Jujuste kazuk dejakngan lang aje wada chuspin tene KDA nang apex draft proposal MHA kalkanbo tene public nang chi question yotna chi doubt yotna yo ngatang discussion ipya ngaja tayarin derte diak juspin iwazashik ngaje nganla chocheotpin inang ngata Mustafa kabe tene draft po chochesena kone chaklas ma mangpo zaten research mangpo zaten tene khong nang nyampo ngeja thugjo do ngata apex ngata wakil nishotle chik Vikram Jono khong Karnataka ne juksteno yang Supreme Court wakilino yang constitutional expert no tene khong iska lokte ngata draft proposal bo choste no yang ibo tene jagmar chu ya chongena choskane ngata draft chikmano ibo lo ji ngata lashoste evol sungkan jigno kabina nga tene ngata daksenge ming juskan khong iske manpa yang ngata mi khaspa mangpe ang jagare satim sena khogune input ina mangpoyot kabe skorla tene Mustafa Haji ngeja detail nga juchezin tene nge spera mangpo majua tene draft proposal bo kazuwa irol song ibo chang bastiot kan spera jigmanok ngatange apex na KDA demand sangma gyuznok ngata statehood nang 6th schedule bo main demand bo nok ngata teoman pa ngata demand tarungis kawena ngata domicile in pin kawo ngata thak chat sarkan inok teoman pa ngata parliamentary seat nis lazakla tong zarkan demand bo nok tegune ka discussion chogosyang mapojik metkyak samarak ta main chalak po ngata statehood demand nang tene 6th schedule demand bo nok tene tebo ngata diste tangstot kyak tene tebe na thebajik ngata dangsting ni chi diskyak zernale te ngata mi mangpoji ka case song teno ngata tegune ka attempt to murder case tangste kyak kagun convict chana life imprisonment sukbang yot kyak tegun ma serious perajik nok tene ibo ngata political demand jik nen jik tang tezane ngata waka sungkan jik 24 tarik jaga 24 September jaga waka sungkan nok tene tegunang ngata talks pothorel demo chache chana ngatang chitong natija jika lebat na tene te changmang metkan chago zerte tene draft proposal bi jugma bi ngata diste tono kabina sonamang chugang ngata include no kona unconditional jail ne put goes bo tene nge Mustafa Haji Jua Pulin tene ngerange draft proposal score la ngala introduction jiksala zat tene ngata changmala justice scaps tangin tv pya ngata chamshik ngata tu chana ngata nente suachi doubt yot tene tebo ngata during celsius koshichwen teo song pasangna nge tene Mustafa Haji tene during discussion bo nge handover choste khong lajun tene score la ngira goma introduction jiksala zat आप सभी को पहले तो जुले और गुड आफ्टरनून और सलाम और जितने भी मोअज़्ज़ज़ लोग यहाँ आज आए हैं आप सबको हमारी तरफ से शुक्रिया। हम ये समझते हैं, मैं इंडिविजुअली एज समझता हूँ कि जो भी लोग यहाँ आए हैं वो एक कंसर्न हम लद्दाखी एज ए कंसर्न लद्दाख के लिए रखते हैं। हम सब लद्दाख को लेकर फिक्रमंद हैं और जिस तरह के हालात अभी इस वक्त लद्दाख में है उसको लेकर भी हम बहुत चिंतित है। हर कोई भी शख्स मुझे लगता नहीं लद्दाख में ऐसा होगा जो अभी जो हालात जिस तरह से 24 के बाद हुआ उसको लेकर चिंतित नहीं होगा, लद्दाख के फ्यूचर को लेकर चिंतित नहीं होगा। और वो हर अपने आप से हर कोई चाहेगा कि जितना हो सके वो एक अपने लेवल पर, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनली अदरवाइज भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे। डाउट कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन देने का वो सोचता है, तो इसीलिए आप सब यहाँ जुड़े हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि काले ने कहा, मुझे लगता है कि
नॉट एज ए लॉयर बट एज ए लद्दाखी। मैं द्रास से आता हूँ, जो आपको पता है लास्ट बॉर्डर है हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का। मैं जब पहली बार अपेक्स के साथ जुड़ा था वो 2021 में था। मैं थुपचंद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस वक़्त भी काफ़ी लोगों से पूछ कर ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनली जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है उनको यहाँ हमें लाने की ज़रूरत है, सो दैट हम कोई भी रिसर्च हमारी जो डिमांड होगी उसको हम गौर व फिक्र करके कॉन्स्टिट्यूशनली कोई लैकुना न रखकर, कोई शक और शोभा न रखकर हम उसमें रिसर्च करें। तो मैं एज ए रिसर्चर, एज ए लॉयर, तब से 2021 से, 20 के एंडिंग से 2021 से ऑलमोस्ट 5 सालों से मैं जुड़ा हूँ अपेक्स के साथ। और कालिंग का बहुत बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया और कहा कि जो मेरी लीगल जितनी भी एक्सपर्टीज़ है, जो मेरा बैकग्राउंड अगर आपको कहूँ तो मैं नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद से 2013 से पढ़ा हूँ और मैं लॉ में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। और मैं जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन होने से पहले भी विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, जो एक बहुत बड़ा लीगल पॉलिसी जो इंडिया के लिए लॉ बनाती है, उनके लिए भी काम कर रहा था। और जम्मू कश्मीर के उसके रिगार्डिंग बड़ा इंटरेस्टेड था, 370 को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर, लद्दाख को लेकर। तो इसमें मुझे मौका मिला तो तब से मैं जुड़ा हूँ। और जो मेरी तारीख है अपेक्स के साथ, वो लद्दाख की भी, जो 2019 के बाद जो लद्दाख की तारीख है वो उसकी भी तारीख है। तो टू बिगिन विद मैं ये समझता हूँ कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि जिस मरहले पे इस वक्त अभी हम हैं लद्दाख में, आप सबको पता है कि स्टेट यूटी बनने के बाद लद्दाख में बहुत सारे सवालात थे कि जो आने वाला हमारा मुस्तकबिल होगा, फ्यूचर होगा, वो लद्दाख का कैसा होगा, किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस हमें मिलना चाहिए, किस तरह की प्रोविजंस लद्दाख में होना चाहिए जो इस लद्दाख की छोटी पॉपुलेशन को, जो सिर्फ 3 लाख है, उसको बचाए रखे, उसकी आइडेंटिटी को बचाए रखे, उसके कल्चर को, उसके लैंग्वेज को बचा कर रखे। वो हम सबका अपने अपने लेवल पर सबका सरका और सबका कंसर्न ही यही है। उसी कंसर्न को लेकर मैं भी अपेक्स बॉडी के साथ जुड़ा हूँ और अपेक्स बॉडी डे 1 से उसी कंसर्न को वो किस तरह से इसको रिजॉल्व करें उसके बारे में सोच रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि जब 2019 5 अगस्त को यूटी बना तो उसकी इमीडिएटली 2-3 महीने बाद हमारे यहाँ से लेह से बहुत सारी टीम्स गई, आपके पुडुचेरी गई, नॉर्थ ईस्ट गई, बहुत सारे टीम हायल के थ्रू गई, इनने रिसर्च किया। मुझे याद भी है करगिल में तो कर्फ्यू था, बट हमें याद है कि यहाँ पे बहुत सारे ओपन डायलॉग्स एंड डिस्कशंस मुझे याद है लेह में हुई थी, जो एज ए लद्दाखी, ऑल्दो मैं उसका पार्ट नहीं था, बट बड़ा मुझे वो ज़बरदस्त लगा, बड़ा कंस्ट्रक्टिव लगा। भले ही किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल वो नॉलेज ना हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह से एक आर्किटेक्चर होता है, जिस तरह से स्पेस होता है, जिस तरह से इंजीनियरिंग होता है, जिस तरह से MBBS होता है, वो भी एक टेक्निकल फील्ड है। तो जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे नहीं, उसमें आप अच्छे से जानेंगे नहीं, तो आप कहने को तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज उसकी बारीकियों को, टेक्निकलिटीज को आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से बट मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा उस टाइम पर जब आप लोगों ने यहाँ पर इतने सारे डिस्कशंस किए इसी को लेकर। और तब से मुझे याद है जो 6 शेड्यूल की डिमांड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की, लद्दाख को किस तरह से बचाया जाए, वो कंसर्न तब से लेकर अभी 6 साल हमें इस मुद्दे को हो गया है। तो इसलिए जैसे काले कह रहे थे कि ये जो ड्राफ्ट है वो ऐसा नहीं कि इट केम आउट ऑफ ब्लू, जिसको कहते हैं ना कि आसमान से टपका और खजूर पे अटका, ऐसा नहीं है। इसको 5 साल हमें भी हुए हैं और इस 5 सालों में हमने, आपको याद होगा आपने एपेक्स बनने से पहले भी रिसर्च ऑलरेडी किया था। बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये जो सिस्टम अभी जो हम मांग रहे हैं 6 शेड्यूल का और स्टेटहुड का, वो 1960s में, 1950s में, 1940s से उनकी डिमांड है। और 6 शेड्यूल का जो प्रोविजन है वो सिर्फ इंडिपेंडेंस का, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं है, ये 1885 का, 1800s का, अंग्रेजों के जमाने का प्रोविजन है, जब इन्होंने रियलाइज किया कि ऐसे जगहों पे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो जगह है, जहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन जो बस्ती है, उनकी डेवलपमेंट, उनका जो अपलिफ्टमेंट, उनकी एम्पावरमेंट मेन लैंड से लेकर बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। वो आप खुद सोचना, अभी इस टाइम पे हमें टेक्नोलॉजी के एज में, इंटरनेट के एज में इसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है कि 1947 में, 1800s में हमारा नॉर्थ ईस्ट क्या रहा होगा, लद्दाख क्या रहा होगा, आपको सबको पता है। तो ऐसे में उनने ये ग्रीवांस सोचकर कि जो ट्राइबल लोग हैं, इंडिया की डेमोक्रेसी बड़ी डाइवर्स है, जिसमें ट्राइबल जो लोग हैं, जनजाति जो लोग हैं, उनको वैसे भी मेन लैंड से उनको वो मैच है ही नहीं किसी तरह से, वो कंपटीशन है ही नहीं है, तो वो ऑलरेडी पिछड़े थे। तो इनको वो प्रोटेक्शन तब शेड्यूल्ड एरियाज तब इनको डिक्लेयर किया था, आज से 200 साल पहले इनको डिक्लेयर किया था। तो उन्हीं बेसिस पे फिर इवेंचुअली जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी इंडिया की, हेडेड बाय जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे हमारे BR अम्बेडकर जी, जो खुद एक दलित समाज से आते थे, जो एक पिछड़े समाज से आते थे, उन्होंने सबने बैठकर एक आईन बनाया जिसमें हमारे 6 शेड्यूल का प्रोविजन डाला। तो ये जो चीजें नॉर्थ ईस्ट में उस वक्त लड़ाई लड़ रहे थे, जिसकी बातचीत चल रही थी, जिसके लिए डिमांड कर रहे थे, वो अभी हम मांग रहे हैं।
अब उसको जरूरी ये हमें समझना भी जरूरी है कि उसको मांगने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि जब हमें याद भी है जब हमारा इंडिया बना, इंडिया का आइन बना, उसी टाइम पे हमारे जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट में आता था। आपको याद है जम्मू कश्मीर में भी एक डेवलपमेंट हो रहा था। हमारे 1952 से लेकर हमारे 1956 तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमारे कुशोक बाकुला रिम्पोची थे, मेंबर थे, इलेक्टेड होकर गए थे, जिसमें हमारे आगा इब्राहिम शाह करगिल से थे, उन्होंने एक आइन की वहां पे तामीर की जम्मू कश्मीर में, जो हमारे हिंदुस्तान की आइन आर्टिकल 370 में हमारे हिंदुस्तान की आइन ने अलाउ किया। कहा कि आप प्रिंसली स्टेट थे वहां पे, आपको ये भी याद होगा कि प्रिंसली स्टेट्स को एक टाइम पे ऑप्शंस दिए गए थे, क्योंकि पार्टीशन के बाद एक बहुत बड़ा एक बुरा एपिसोड हम सब ने देखा। तो ऐसे में प्रिंसली स्टेट्स को एक ये प्रोविजन था कि उन्होंने कहा कि इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बाद, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो साइन किया था, उसके बाद उनको टाइम दिया गया कि आप जम्मू कश्मीर में एक अपना आइन बनाएं। अभी से आपको ये पता होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, जम्मू कश्मीर की एक असेंबली बनी जिसको बाई कमरल असेंबली बोलते हैं, जिसमें बाई कमरल यानी जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जिसमें हमारे एमएलसी चुन के जाते हैं, और जिसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जिसमें हमारे एमएलए यहाँ से चुन के जाते थे। 4 एमएलए चुन के जाते थे और उसके बाद हमारे 2 एमएलसी जाते थे। और आपको ये भी पता होगा कि लद्दाख उस टाइम पे इतना पिछड़ा हुआ था। अगर आप कुशोक बाकुला रिम्पोची की जो स्पीचेस देखेंगे, आप में ये हर स्पीच में ये देखेंगे कि हमारे लद्दाख का जो मुद्दा था उस टाइम पे सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान था। मकान भी नहीं था, मैं कहूँगा सिर्फ रोटी और कपड़े की बात चल रही थी कि इतने बैकवर्ड हम उस टाइम पे थे लद्दाख में कि लोगों के पास खाने के बांधे पड़े थे। राशन का बहुत बड़ा मसला था। मल्टीपल कमिटीज उसके बाद जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट ने बिठाई, जिसमें ये कहा गया, ये पता करने के लिए कि लद्दाख की प्रॉब्लम्स एक्चुअली है क्या है। तो उस समय उस हालात से जब गुजर के आए हमारे उस तरह के जब लीडर्स, अगर इवेंचुअली हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए, तो हमारे लद्दाख की एक हिस्ट्री है कि हमने, लेकिन तब से लेकर 1947 से लेकर 1990s तक, जब तक हमारा एसटी स्टेटस लद्दाख को नहीं मिला, बड़ी ताजुब की बात है। अभी भी सोचने में बड़ा इजी लगता है। हमारे इतने सारे लोग अभी आईएएस बने हैं, केएएस बने हैं, डॉक्टर्स बने हैं, एम्स में काम करते हैं, इंजीनियरिंग में आईआईटीज में पढ़ते हैं। वो लोग, अगर हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस हमें नहीं होता, जिनके लिए काले लोगों ने जो कुर्बानियां उस वक्त दी, उस वक्त जो लड़ाइयाँ की, वो अगर नहीं होता तो शायद हमारे बहुत सारे अफसर्स अभी नहीं होते। क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम लीडर्स हैं, ऑफिसर्स जो हमारे बहुत कम ऑफिसर्स हैं जो हमारे, अगर रिजर्वेशन अगर नहीं होता हमें वो सब नहीं मिलता। लेकिन आप सोचिए कि 89 में हमें आकर एसटी स्टेटस मिल रहा है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में वो एसटी स्टेटस बरसों से, उनको 47 से लेकर जब से आइन बनाया तब से। तो ऐसे में उसके बाद आपने देखा पहली बार लद्दाखियों ने असर्ट कर लड़कर, लद्दाखियों ने प्रोटेस्ट कर एक ऐसा सिस्टम लाया लद्दाख में जिसको कहते हैं हम ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ ले इन 1997। उसके बाद इवेंचुअली ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ करगिल इन 2003। ना ये जो पहली जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ पे एक बॉडी आई, स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको कहते हैं, जिसमें हमें इख्तिदार मिला लद्दाख के लोगों को खुद लद्दाखी के लिए लॉज बनाने के लिए। खैर उसमें लॉ मेकिंग पावर्स नहीं था, रूल्स मेकिंग के, कि अपने लोग इलेक्ट हो जाए और इसे बड़े तादाद में। क्योंकि आप खुद सोचे हमारे 1947 से लेकर 50 से लेकर अभी तक हमारे सिर्फ नुमाइंदे सिर्फ 4 और 6 ही थे, 2 एमएलसीज और 4 एमएलएज और 1 एमपी की सीट थी। उसके अलावा पहली बार हमने 60 लोगों को चुनने का हमें सिस्टम मिला, जिसको हम कहते हैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। और आपको यह भी मैं याद दिलाऊं, जब लीडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जब इस ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को लाया, तो काले भी मुझे उस वक्त बता रहे थे, उस पर तारीख में ये रिकॉर्डेड भी है कि कितनी मुशक्कत के बाद, कितनी मुश्किलातों से हमें ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिली। क्योंकि जम्मू कश्मीर खुद एक ऑटोनोमस, एक कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी था, एंड दैट इन दैट ऑटोनोमस सेटअप व्हिच वाज जम्मू एंड कश्मीर, टू हैव अनदर ऑटोनोमस बॉडी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल था। फिर भी हमारे लोगों ने लाया। और मैं आपको ये फिर से बार वाजे करना चाहता हूँ कि उस टाइम पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जो हमारे लोग इस वक्त जो जैसे बोलते हैं ना कि आपने ड्राफ्ट में ये क्यों नहीं इंक्लूड किया, वो क्यों नहीं इंक्लूड किया। ऐसा जब आपका ड्राफ्ट एक फ्रेमवर्क हम देते हैं, हमारा जो मोटा मोटा जो डिमांड है वो मेन मुद्दा होता है कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं। जैसे अब हमारी डिमांड 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की है, उसमें आप निटिग्रिटीज को जाहिर सी बात है नहीं भी अगर ऐड करेंगे वो इवेंचुअली, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का, कि जब ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बना लेह के लिए पहली बार 1997 में, तब ड्राफ्ट बनने के बाद बहुत सारे कंसल्टेशन हुए, मिनिस्ट्री ने कंसल्टेशन किया कि किस तरह की प्रोविजंस हमें होनी चाहिए। आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, आई एम श्योर ये पढ़ कर आए होंगे कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में जो हमारा एक्ट है वो बहुत सिमिलर है, उसमें भी टैक्स के प्रोविजंस है, जबकि कौन सा टैक्स हम लद्दाख में लेते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो ग्रेजिंग लैंड का, जुडिशरी की, जिस तरह जुडिशरी का खैर नहीं है, बट ऐसे ऐसे प्रोविजंस है लद्दाख का डेवलपमेंट काउंसिल में जो हमें
जैसे बैम्बू का या अदरवाइज कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो लद्दाख में एप्लीकेबल है ही नहीं है, बट वो सिमिलर है, उसका एक प्रोटोटाइप ऑटोनोमस जो एडीसीज है 6 शेड्यूल में उनका लिया गया, लेकिन वो एडीसीज की तरह ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं बने, ये लॉ नहीं बना सकते, वो इतने पावरफुल थे नहीं, बट उनमें भी बाद में डेलिब्रेशंस हुए। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये डिमांड हमारे 2019 के बाद, कमिंग बैक टू द मेन डिमांड की लद्दाख एपेक्स बॉडी ने, हमने ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुझे बोला कि तुम एक ड्राफ्ट बनाओ हम यही होम मिनिस्ट्री को देंगे, हमने इस मुद्दे से कभी नहीं शुरू किया कि हमें दे दो जी 6 शेड्यूल सीधा स्टेट हो। हमने ये सोचा कि लद्दाख को इस सेटअप में, जिस तरह का हमारा एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इतने कम पॉपुलेशन को कैसे लद्दाख के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे प्रोविजंस लाए जिससे हम एम्पावर हो, जिससे हमारी जमीन जो सबसे ज्यादा है, लद्दाख का 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। अगर आप कोतवाल साहब की बात ही सुने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर कहा था लोगों के पास 8% तक भी प्राइवेट लैंड होल्डिंग नहीं है हमारे पास, वो एक बहुत बड़ा नंबर है। मुझे लगता है लद्दाख के लोगों के पास 2% भी प्राइवेट लैंड होल्डिंग नहीं होगा, अगर आप देख के चलेंगे। तो ऐसे में जब हम लैंड की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? हम बोलते हैं युल्पा सखेत युल का हम सखेत बांटते हैं, बोलते हैं युल का एक चरागा होता है, युल का एक रलम होता है, युल को हम जैसे शौक मचा देती चरागों में, जहां से हम घास लाते हैं, ग्रास लैंड होते हैं। तो ये सब लैंड भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो ऐसे में इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने बहुत सारे लोगों को, मुझे याद है 2021 में पहली बार, मेरे ख्याल में क्वेश्चन आंसर में आप बोलिए तो थोड़ा इंट्रोडक्शन में तब क्वेश्चन आंसर आएगा। इंट्रोडक्शन बताऊं क्यों? हाँ, ऐसा कीजिए, देखिए डिसिप्लिन से एक एक आदमी बोलिए ना, सब इकट्ठे बोलिए ना। आने तो दीजिए वहाँ, हम अभी पूरा टाइम से क्वेश्चन आंसर देंगे, पहले मुझे इंट्रोड्यूस तो करने दीजिए। भाई सबको टाइम देगा ना, जितना मर्जी क्वेश्चन सब टाइम ले कीजिए, लीजिए, आप आराम से ले लीजिए, कोई बात। फिर मेरे ख्याल से सबको इतना पता है, ठीक है, क्वेश्चन ले ले आप, ठीक है, अच्छा ठीक है, फिर आप ही पूछिए। एमएलए गोष्ट मतलब रजिस्टर बिल्कुल तो पॉपुलेशन बेसिस का गोष्ट पॉपुलेशन हो एज अ बुद्धिस्ट मिनोरिटी ना होता आज क्या नया इक्वल राइट होवे ना जखान को वो क्या गजुक शिकी मैंने दफ्तर चीज हो गया एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट दफ्तर ई जनरेशन में क्यों क्या लग गया ना राइट लिबरल नंबर से याशिक हार्डकोर म्यूजिक से majority na yokan bo station na politics bo religious basis there's an state who demand bo ka ni nga na majority na yokan basis ni minority na yokan un dabai chacha ode ka kazushi ga na isko balance win zakan bo like doubt so chia na st the reserve change na na ta yin chelo tangada just as a population based thomna area wise like delimitation first preference population based था ना नहीं समझो ऐसा बात बुद्धि तक काम थोड़े मेजोरिटी का मात होना ई जनरेशन का कोई पॉलिटिकल लीडर उनपे मोय ना नेक्स्ट जनरेशन हार्डकोर पॉलिटिक्स चीजों से उसको पॉलिटिक्स से शिक्षो वो बैलेंस होते हैं पोस्ट ना डाउट्स में वो देना ऑलरेडी 6 शेड्यूल का इसमें ऑलरेडी 6 शेड्यूल का आपने एक प्रपोजल दिया हुआ है, ड्राफ्ट बना हुआ है। इसमें 6 शेड्यूल में आपने अरेंजमेंट किया हुआ, ये सब 6 शेड्यूल ना 6 शेड्यूल को जो हम डिमांड कर रहे हैं, हमें जब हमारा एजुटेशन चला, एजुटेशन में हमने ये डिमांड किया कि हमें 6 शेड्यूल ही चाहिए, उसके आगे पीछे नहीं चाहिए, हमें 6 शेड्यूल ही चाहिए, इन टोटो चाहिए समझ। लेकिन इसमें जब ड्राफ्ट में हमने देखा, ड्राफ्ट में था 6 शेड्यूल ए, व्हाट इज दिस समझो, दिस इज क्वेश्चन समझो। उसमें क्या कहते हैं 6 शेड्यूल ए में आपने क्या लिखा हुआ था, 6 शेड्यूल आपने क्या लिखा हुआ था, उसमें ये सब अरेंज करो जो ऑलरेडी हमारे हिल काउंसिल में है, पंचायत डालो, म्यूनिसिपैलिटी डालो, उसके बाद जो फाइनेंस डालो, उसके बाद जो ना आपने जॉब डालो, उसके बाद रिक्रूटमेंट डालो, ये आपने बोला हुआ था समझो। तो इसमें हमें कंफ्यूज समझो, ये नहीं होना चाहिए लोगों को। क्वेश्चन ये कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ये चीज है, ये क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन। सो ये बहुत सारी चीजें देखो ना, ऑलरेडी आपने ड्राफ्ट दिया हुआ, अरेंजमेंट किया हुआ, ये सब इंक्लूड कीजिए। एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, एक बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है, इनका ये कहना है कि जब स्टेट बनेगा पॉपुलेशन के हिसाब से अगर डिवाइड होगा तो इनका एक सिंपल कैलकुलेशन है कि बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी में जाएगा। हालांकि इस तरह से देखिए, जो हमारे अभी 2 काउंसिल्स है कि नहीं है, 2 काउंसिल में 30 मेंबर करगिल में है, 30 मेंबर लद्दाख में। मुझे बताइए मेजॉरिटी किसकी है, नंबर बाय वर्च्यू ऑफ नंबर
शुद्ध मेजोरिटी। हाँ वही मैं आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ मैं। आंसर तो देने दो, आपने लंबा क्वेश्चन पूछा, मुझे आंसर नाउ। जब भी आप जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन आपने देखा होगा अभी 2021 के बाद जो किया, आपने देखा उसमें डिलिमिटेशन में कितने सीट्स जम्मू कश्मीर में इंक्रीज किए। जम्मू कश्मीर में सीट्स इंक्रीज किए, जम्मू में 7, कश्मीर में 1, और पुंछ और राजौरी का जो सीट है उसको जम्मू कश्मीर में लाया। तो जो भी डिलिमिटेशन, इंडिया में डिलिमिटेशन एक्ट है 2002 का, उसमें देयर इज अ सर्टेन प्रोविजन जिसमें हमारी कमेटी बैठती है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज बैठते हैं। उसके बाद अब उस स्टेज पे गए जो अभी आया ही नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने तो दो, मुझे बोलने वो दो, जवाब तो सुनो जवाब ना। तो सुनो मेरे भाई। अभी आपके पास हमारे सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए डिस्ट्रिक्ट, किए ना अनाउंस, अभी डिस्ट्रिक्ट कितने डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए, 5 और डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए, 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे हो गए। आप जो डिस्ट्रिक्ट जब इंप्लीमेंट होंगे तो उसके बाद जो इसका डिलिमिटेशन होगा वो तो स्टेट कोई असेंबली अगर आएगी उसके असेंबली की सीट्स के हिसाब से डिलिमिटेशन होगा। नहीं प्रैक्टिस इन इंडिया में अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज दैट इट हैज टू बी एज पर पॉपुलेशन, बट ट्रेंड हैज बीन दैट जो गवर्नमेंट को जो लगता है कि अगर ऐसे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया में अगर एज पर एरिया वो करते हैं डिलिमिटेशन में, वो हमारे इख्तियार में अभी थोड़ी है। और आप ये कह रहे हैं कि जैसे उसमें एक मेजोरिटी ऐसा आएगा, जैसे अभी आप मैं द्रास से हूँ, द्रास वाले की रंजिश करगिल वाले से है। द्रास वाले में जैसे मुस्लिम अगर है भी है तो उनका करगिल से रंजिश है, जांस्कर का करगिल से है, हमारे आर्यन वैली का करगिल से है। तो इस तरह से आप ऐसे कह रहे हो जैसे पूरा मुस्लिम लद्दाख का द्रास वाला जो मुस्लिम होगा वो लेह नुब्रा वाले मुस्लिम से मुझे लगता नहीं साल में कभी जिंदगी में कभी मिला होगा। मेरी बात सुनिए आप, एक हाइप बनाना होता है हमारे दिमाग में लोगों के ना, डराने का। जैसे अभी बोल रहे हैं ना कि इंडिया में 80% ऑफ हिंदू पॉपुलेशन होने के बावजूद बोलते हैं हिंदू खतरे में है, जबकि 20% ही एज पर द सेंसस इन 2011 ओनली 20% मुस्लिम पॉपुलेशन इज देयर। देयर इज नो वे दैट द हिंदू कैन बी इन ए माइनॉरिटी। इसी तरह से मिथ बनाया गया कि स्टेट अगर आ गया तो स्टेट में एक पार्टी पॉलिटिक्स चलता है। स्टेट में जो अगर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर सीटें बांटी तो डिस्ट्रिक्ट अभी तो 5 बुद्धिस्ट मेजोरिटी है, तो करगिल में तो हमें आज शोर करना चाहिए था कि हमें मुस्लिम को अलग से वो दे दो जरे। ये कैसा मतलब लॉजिक इलॉजिकल बात हो गया कि अगर आप इस पे बोल रहे हो कि नंबर जब डिवाइड हुआ ही नहीं, डिलिमिटेशन जब हुआ ही नहीं, अभी जो काउंसिल का डिलिमिटेशन है वो जैसे डिफरेंट डिलिमिटेशन काउंसिल। अब आप ये बोल रहे हो जैसे काले कि मैं सवाल पे आता हूँ दूसरा, इनने कहा 6 शेड्यूल ए देख लो, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239 यूटी लेजिस्लेचर की बात करता है, उसमें दिल्ली का यूटी 239 डबल ए है, एक में पुडुचेरी में 239 ए है, एक में अगर कल एक रिकमेंडमेंट होगा 239 ट्रिपल ए होगा। इसका मतलब क्या 6 शेड्यूल चेंज हो गया है? कल जब आप अमेंडमेंट करेंगे 6 शेड्यूल में लद्दाख को ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, सर से पूछे कैसे करेंगे मुझे बताइए, मैं कैसे करेंगे आप मुझे बताना। आप एसपी रिटायर्ड है, मुझे बताइए कैसे करेंगे आप 6 शेड्यूल में अमेंडमेंट करके। हम 6 शेड्यूल में कैसे डालेंगे लद्दाख को? लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल में डालना है तो कैसे डालेंगे मुझे बताइए। लद्दाख को 6 शेड्यूल में डालने के लिए क्या प्रोविजन रहेगा? आप देखिए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के है ना, ए से लेके जे तक है। आप मुझे देखिए 6 नहीं 6 शेड्यूल छोड़े, 6 शेड्यूल में आप मुझे बताइए, आप 6 शेड्यूल में मुझे एक बात बताइए आप मुझे। हाँ तो 371 जे तक क्यों है? 6 शेड्यूल ए में 6 शेड्यूल में आप अमेंडमेंट करेंगे। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ ना साहब। 6 थोड़े था 6 शेड्यूल था से लगा था कसो एक्चुअल कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे? जे तक तो अलग थोड़ी है, कैसे पहुंचा फिर? सिर्फ 371 चिमा जोफ्ता क्यों रखा? कल लद्दाख को अगर 6 शेड्यूल देंगे तो कैसे देंगे आप मुझे बताइए, कैसा क्या प्रोविजन रहेगा? नहीं हाँ तो क्या बनेगा ना 3 कसो था तेज रहे तो 6 शेड्यूल होता है वो एक चीज। शेड्यूल कितने हैं? डिस्कशन वो कह रहे ना जहाँ अडॉप्टिंग जात खान मो ऑब्जल जात का अडॉप्टिंग मो तुष मन मंगपुजी हाले मगर ये अडॉप्टिंग जात खान स्कोर ला मीमांग समय ना मां कंफ्यूजन बना मां पे सोचो खास कर लद्दाख से छोक समय ना सुंबा समय या अडॉप्टिंग चुकान बोला काते दा सुमजिक ना लोगी सुमजिक बोर तो ना तेरे मीमांग मुला हा गोचा जी फिर समझी बोर गोचा ना तो मीमांग मुला रे ना रे हा गोचू से कम मन मंगपुजी आता इसलिए छा गोचे को जरूरी ना समरंगे हाल तेने अडॉप्टिंग ना दिन बार अंगे जा मां ओबियल मंगपो जाते मां मंगपो डेमोजी छंगमा कंसेंसस सिचुएशन स्पेरा होंगे तो नोमा डेमा तो वाला किसी लेकिन नोमा ना yang da pina spera fachik mana thama madi ayo no midik jase gumsan pe jona tasa state no wada statehood bo khere dikche bira 6 schedule bo dikche rak jara soksano
oder State Hood Midik Charges Pia Midik Charges Pia Ngeja Apex Bune Tuxan Sago Speech on Agado Mata State Hood in Angeja Mata Kargilpa Manchawonet Tuxam Molano, then a population basis you got any Mata Chawishano Molano. Mata Vimusim Molano, Mata area level like Chawishano Zano. Inna Juta, Kaju level you got on Frank category Frank Kadune. Azuk Josana, Frank Yotano, they will not actually attack a pigeon right now, the Samadiana. Chictevano, Nispa has a statehood for Mazeba born Galaxy, Azuk Samcha, Tepia Samara, Nata Hanla, UT Azuk Topana Pala, Nata Tezano, where Lena Kargil Nisko Karena, my Jixtena, Minchane, brotherhood, you can unite some of my Nemadukane, Michigan, Halato, Hamisha Luz Bushal and Tararak. Naya MP election was about setting Naya Jagar Charu, MP election Namana Jagar Charu, and Tajano. Sumbasana, Otepian MP Nistan, which are of the Community, pension and say, then Borat Jadon, Dimanjale. Acha, that what the MP needs to come around, the state young election just to get in, then a young what in a town between churches, Periga, Desama, Desperavano, Chicks Peratuino, Tepia, Mimang Banja Mangat Pala. Then future in a town lake election more caps have been Nagato, Despero Chama, Mana Chama, Dixon, and dropped on a Demara Samaraya, Chicto Samara. Nispa Kerna, Apex Bone, Jalta Tang is some Jignizam, Molka, and Jalta Satano, seated for Mitopzatan was an operation based in a Chisaman, Gimzanma Manguias, then I told her, then a 6 year long Chaman of Zano. मगर 6 शेड्यूल ची योगदान मछमा ते फैसिलिटी मछमा 300 का तारीख ता जरजानो ते कजु ता चेनो जखम बनी जान ड्राफ्टिंग में ना यों बशा ते 6 शेड्यूल योगदान मछम फ्लक पा के वो नाते सम ता जरे मोशा पा तो तंकन मो कजु शिगा ता महिन चेरा ngata हिल कंट्रोल वगैरह अब गेरे चोसेना डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल चोसेना जो ता महिन चरो लेजिस्लेटिव पावर वो कजु ता महिन चेनो ते सम ngata land now, then a job now, then a culture now, there's some protection charge. There's how many took some salary drafting and young wishes to Mazarino. Others also going some salvo doing some other things. Patano, Patane, demand in a statehood and 6 year in Sky. Mata didn't to Patam 6 struggle journal, 6 year in statehood Niska, Kurte, Mata Pologoron, Manko, Mata Joskat Mata. Last me mang chat wote demand in the Cambote and one cap. Hamago mouse kept them. Scholar. In a Dilly to Pang, some captain and demanding now, 6 year old now state to the cap. Scholar. Down me ne frock some cap. They will Hamago Shiela Sontaman Baka. Me Gupju Goli Pop cap. Me Gupchi ka daksa attempt to murder case kya te sangma hamago sontemano hamago shokna chamano baka kaltes ngatanga statehood hosa medzerna statehood ngaje zemet thorerang thop chachizno ma kaxpo no statehood pu ma chmo demand chosno statehood thorene mitom ngata zeshes me kya maga statehood ngata demand machona तेने ngata मंजूर रगला स्पन हमेशा पिया ब्यूरोक्रेसी योगा दुखजेसला येजा तयारी ना इसको दा ते स्पेरा छेनमो न जुमुनमान ब्यूरोक्रेसी का अपर हैंड मान योचे नोची थकचा पसंग ब्यूरोक्रेसी तांचे जनो दिरिंग जरा नोक ngata 6000 करोड़ पेने थुकमा पेने मंको बड़ाई सोंतो ब्यूटी थोक बने आजानो ते पेने बेका ngata चांग से मेट नंग दिक्चरा During slip 10% council niskala host town te ka digatena tus gune pia ngata te pene sangme ka ngata decision menches ngata hak met kya ngata statehood met na ngata yang thap shigot kya ngata negotiation na chi pata UT with legislature government ta na space just there te wangi zemet ta unok zting zemet ngata chi chalak chi demand chona hamesha chenmo jik chwa chungun jikman chwa man थोड़े negotiation चाचेज़ नो negotiation जाने संगा बास्कान रुचि संकान बो ngata public amtis nge ngal lang justin ngata ana dikte man maskop
चियाजना पब्लिक मीमांसा चिकोस थोड़े ची का बाप से छारो दक्सा ngataंगे गवर्नमेंट नजर नोते उन्हें जा तुकी जोड़ दो 371 तांग अंजर नो मगर ये जे कॉन्स्टिट्यूशन ना सील तेजिक सजा 371 ना सिक्स शेड्यूल ना तम शिक्षात सिक्स शेड्यूल जैसा देंगे जानो ते वो गोप्स करते नोक्ज़ात नेले सिक्स शेड्यूल जैसा सेफ गार्ड तांग अंजर ना तेने सिक्स शेड्यूल को कौन चाहिए तांग ना तेने ते वो तांग ले क्या तकलीफ है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ने लंदन दो दफा लंदन मिस इलेक्शन ना बीजेपी पार्टी जीता ही सुनते ना सिक्स शेड्यूल तांग तेने यू ट्रांस चाहिए नेस्ले यू ट्रांस ते पियनेंस ने दिरिंगी ना जरा सिक्स शेड्यूल ना थोप ना सस्किस मिरिक्स बाहुने लाला कंपेन ना अपर हैंड चानो थोड़े थकचात ना तंग न्यानो नो ई लेना सोंग चोका ने लाला संगमा सोंग ते शुगजी तंग के सिक्स शेड्यूल तंग ना नजा काफो छाचिस दुख जाते निजा तुकी जोत में रहते बोले सांते योट डोमा ते भी पिया ना जब सिक्स शेड्यूल तांग जरते लंदन निज निज इलेक्शन थांग तो ना सिक्स शेड्यूल चिया मितांग जरता नजले सिक्स शेड्यूल तांग ला काफो चोस्त नो लोशना राते नो तेने मी संग में सिक्स शेड्यूल रंग जरिन चिया तो शिया ला चिया सोना ते मी संग में जिमा सु कुर्चन मी दुंची का गुप्ची का दिरिन केस होत क्या बे ते संग में चा हम को सोंते नो ले दंग रंग ना तुवा सोंपिन जेल दखला मी गु मने मालू सा तो ची चारुक ना ता स्ट्रेट फुट नंग सिक्स शेड्यूल पे गजन नंग कोने जेल नंग को दुख से जरूर नेजे इजुगा ngaje ika ibu ngaje tuksik masam zigmo taala ngata point wise ngaje question yot na jawab taala ngaja tayar in zerte te pia nitty gritty yono ngata mangko constitutional spera yono te pia Mustafa Haji Khonche se tonta pokhram te na pia nga te sambe lantang na mano thore ngata talks la chaza na awone sawal mangko chuano ngaje wakil thi te kherano Dangres na Mustafa Haji ngaje thite yotpin tesang ala Vikram thitotpin ngaje le Supreme Court wakil te pe I thangma constitutional spera anuk ngata ibo ha gote discussion zat bujale ngata mane am mijiga mane nitty gritty ngata mangko je ha goman ngeje nga personal zerte jugu chukse lagruk ye job to nge demand ni maro एपेक्स डिमांड एपेक्स लाख से मी वो संगे चोकला नहीं और ये वो यहाँ ना ज़्यादा नंपे चोकदूस एपेक्स ना डेस ना मिडेसिन का थुक्ता ने थक जातन का नामान नांगे थक जात का नामान जनरल काउंसिल ले छा कोशे रखज़र तेनो जनरल काउंसिल ले Chiva ngerale di bos gocha ngeran mos ngerante dapo kalesting na bos discussion doang demosong maskedali daksa ngeran state duri khilaf chiva in jere ngeran mos nga sirf dena dotton sum borille state duri khilaf men de dotton bangera pura chona dirin samma sang khapche chichi yutina kami pisi du gyali yutina chi kami pisi du zerna dirin ngeran le ngata yuti chap thopa kargila director phet po dugle chief engineer phetpo kargila dugle phetpo le phetpo kargila ngara rang nyungkani dena ngacha shugu sen chwala kargila chago seno kargila songba ngera ale hotel la jakma sunduk pa 15000 kharcha songle ngera do mol state dul bilkul ngiri फेवर है थोड़ा ला kargila ngera ale le acham se kargila pa dukcha si jaga tang so kargila dukcha si jaga tang na ngacha state dul ngera mana welcome ठीक लागले ठीक निस्पा जेरना निस्पा न्यूक्ले दिरिंग एरा स्टेट रूट जेरत एरा एमएलए सुमचु थोप ना थोड़ा लंगा जे मेरा लद्दाख सिना दक्सा ngata bomnon chi bam jona nga lo stong chi sambata si ngata जे मेरा ले अफगानिस्तान ना पाकिस्तान ना खचुल ना देना बोटो सारे खतुम सो योसो दिरिंग chi बाजेना नुब्रे ना थोड़ा लंगेरा ले ngata एमएलए फेक मेरे सचा मिनु स्कम्पारी yang caca minuk, piang caca minuk, chusolang caca minuk,
देना चेन छना निरी निरा दे कानून जच्ची जो बोटो point khachi na diso dele point tang pe kanga do diso ki nam I movement shuru song de jana apex leadership sangme de mol du pen ki I ga la si mimang la mol jana ki ngata I ngata demand bo statehood ponang 6 schedule bo mana inna election bo sarana thobo thore stigma election bo sarana thobo nang la thobo na thobo zarkhan so semalab isu jor bhale jatu de tena yeja aur hmesha bo khere Delhi 11 ke Delhi media foundation हाँ जी इस बार आप लोग क्या उम्मीद लेके आएंगे कल आप लोगों का एमएचए के साथ मीटिंग है तो बहुत लंबा खींचेगा जी 1-2 मिनट में नहीं होने वाले एक मीटिंग में नहीं होने वाले 2 मीटिंग में नहीं होने वाले 1-2 साल लगेगा सो तो संग मन सरा इंग्लिश क्यों तो ही का ठू सामने दूंगा तख्ताना तो कुछ नंगला तो कुछ जेल तो कुछ तो मत खाले सो तो संग जलता इंग्लिश मोलचा स्पीकर ना तने अरुक सिसारुक जले वो क्या दो नोटिस जो ना बार नोटिस जो ना तो मामूल चिकन सामरा एमएचए गोस्ता का लेफ्ट ना मना थोड़ा सी उम्मीद नंबर नंग हम तो बहुत उम्मीद लेके आए कि कल परसों में डिसीजन होना चाहिए या हम 10-12 दिन हफ्ता रुकना पड़े हम रुक के लेके जाएंगे मोहन सोचते हैं ना तो प्रेशर सनो समारा याले तेने निस्पा का ये लोग ले हाँ निस्पा का दो ये जो ड्रॉप ना दो डिसे दो कि ना स्टेट बुशुला ला टैक्स कलेक्ट जो जाना पार्सल लेन ना रोलुक बालंस यादी थामे करना क्यों मतलब जबकि डिलिमिटेशन चोता ना ह्यूमन पॉपुलेशन दिया चोतु द टैक्स कलेक्ट चोता ना एनिमल पॉपुलेशन का चोइस मतलब इतना तो समझ आइए तो मी पॉपुलेशन तो गार मा यो रलु पॉपुलेशन तो मा गार यो देखा ना या फिर थों पे तो मतलब एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संघ में रहना है आजू को डिस्ट्रिक्ट पे नाना टैक्स कलेक्शन मल खाले लेकिन तने जमा चोता ना तने स्टेट कॉमन आजू सी ना आता जमा चोत मल सो तो सन तने गा डिस्ट्रिक्ट को ना टैक्स न्यू नो चा सो तो ये तासु दुख चा टैक्स तो उधर से आ रहा है पैसा उधर से आ रहा है जरे मतलब ये दो जरे की मतलब रहना है डिस्ट्रिक्ट पुशला रहना ठीक चुना जो तो सजा में नवाज ले शुआपा बे का शुआपा बे का दो मोले दुख ये ड्रॉप ना लेना करगिल मैंने माना मेंशन भी दुखाले चिचिपा ले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जरे तो चिचिपा करगिल ऑटोनोमस काउंसिल तने yang डिस्ट्रिक्ट सोमा प्रपोज जाते नो अनाउंस जाते नो अभी सो तो ओ तो सामने छोशी माना में तो ओ तो संका ची छचा नो जरखन बे देले तने टुकपा बे का तो टुकपा बे का ले अच्छा टुकपा तो से दांग यो छतो याले दुनपा बे का तो दांग जी छुपा ngata azu ko azu samena dang I proposal by public domain la yong छुपा ngata thubu na ga to na thule la 6 schedule la zare thale nga de thopai goma nga sa zare tin 6 ta dang proposal bena 6 schedule a zer khanji do pa yo pasang ta ngani 6 schedule bo yo te no ya I 6 schedule bo gar yo to no chale thupcha shi to no ya some chucha sana o do ye question ni le tene yatta beka इस संस्था लगा लीडरशिप मापो इधर आथों इस संघ में लीडर बंची 2000 आथों मुझे 371 क्यों स्टाइल दरकार है मोल तो पिनाले क्यों तो दे जाना एपेक्स ना केडी लीडरशिप मोल तो मुझे हर चीज गोशामिल 371 में गोशामिल मोल तो दिरिंग ये जॉब पे ना 371 के दरकार जी क्यों सुदु वो तो गाजुक सीन दो हम गोयाले तने लास्ट पॉइंट था लास्ट का ये इसका यहाँ लीडर को मोल तो पिन मजा जी डोमिसाइल लॉ वो मजे कट ऑफ डेट चिना यहाँ क्यों आउट कट ऑफ डेट वो माना 47 सुपा मजे स्पेरा तंग यहाँ चला मोल तो पिन हाले सो तो सन दिरिंग आता है 2019 ना कट ऑफ डेट में खंजिक prospective 15 years sikta sadu ta janne be kangata thak chode na yang ata cut of date jipa dong struggle the chazin o to question ne then last yang o de da se state who the favor in amen darkhan be galenga ja so to sayunga gili through submit janjala ju kalabula schedule tribes in any state and two the provision of 6 schedule shall apply to the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. तो कहता है ना हो ड्राफ्ट में 6 शेड्यूल ही बोला ना जब भी आप कोई चेंज करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे क्योंकि मेरे काले को पूछा भी था इसमें 2/3 क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसमें मैं सर को भी दिखा रहा था कि आर्टिकल 239 आता था फॉर एग्जांपल
आर्टिकल 239 जब हम बात करते हैं कि यूटी जनरल असेंबली के साथ है, तो आर्टिकल 239 जब आप देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है कि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि 6 शेड्यूल ए चाहो उसमें ड्राफ्ट ना देते, क्योंकि जब भी आप कोई अमेंडमेंट करेंगे उसमें ये चेंज आना ही है। कंटेंट समझ चौक से निकले, लेकिन उसमें कोई एडिशन तो लाना पड़ेगा, क्योंकि 6 शेड्यूल के जो 4 स्टेट्स हैं आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो पहले से ही है। तो इसमें कोई भी थोड़े फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट यहाँ स्टेट जियाले अरुणाचल प्रदेश चौसिक या नागालैंड को फॉर एग्जांपल जैसे कहता है इनको ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन का एक बोडोलैंड अलग से डिमांड भी है 6 शेड्यूल में हमें ऐड करो चले ए ऐड सकते हैं ए डबल ए तो छनो गले। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन इतना आता है आर्टिकल 239 तना याले आर्टिकल 239 इन आर्टिकल 239 यूनियन टेरिटरी से पता नो आर्टिकल 239 ए होते नो आर्टिकल 39 डबल ए आए नो इंचेस आर्टिकल 39 ई नो, बट इसमें ए होगा डबल ए होगा। फिर जैसे 371 में ए बी सी जी मिजोरम उस तरह से उसकी बात करें। बाकी आता है 6 शेड्यूल खुरी का आता है जरतनो। और दूसरी बात आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, कहा कि जो आपने अभी ड्राफ्ट दिया है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे ड्राफ्ट दिए हैं, ये पहला ड्राफ्ट नहीं है। हमने 6 शेड्यूल पे स्टेटहुड पे उनने बोला था कि असेंबली पे भी हमें कोई कॉन्सेप्ट नोट बना सकते नोट फलान जीता से उसमें हमने कंसल्टेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हमारे विक्रम हैं, बट अपार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट ना आता है एक्सपर्ट उन कानून वो स्ट्रगल कर रहे हैं कौन 6 शेड्यूल थोप से तेल 3 स्टेट हुए डिमांड चलो तिरपा लैंड फॉर एग्जांपल नो बोले त्रिपुरा में अभी कोने तिरपा लैंड अलग से डिमांड चलो कि हमें उसमें भी 6 शेड्यूल और स्टेट होना चाहिए, क्योंकि जितने भी 6 शेड्यूल एरियाज हैं आता है कि स्टेट हुड चीज ना, जब भी जितने भी 6 शेड्यूल एरियाज है आसाम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसमें 10 ADCs हैं, वो सारे अभी स्टेट बन गए। पहले वो स्टेट नहीं थे, पहले यूटी जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971 सो क्या कना मेघालय गिर क्या, त्रिपुरा हमारा बना 60s में, उसके बाद हमारा 87 में था मिजोरम गिर क्या खोलना, पहला उनको स्टेट हुड नहीं था, उनने फिर स्टेट हुड की डिमांड किया। क्योंकि 6 शेड्यूल एरिया में मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आता है आसाम में ना बोडोलैंड इन लोगों ने 6 शेड्यूल एरिया, जिसको हमारा आपको पता होगा काले के भी पता होगा कि सम पावरफुल वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ADCs जन होता है इंडिया ना, उनकी फाइनेंशियल जो पावर जो बढ़ा दी गए हैं, उसमें भी जब आप देखेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि उन्होंने बहुत सारे लॉज पास किए हैं। जैसे 6 शेड्यूल छानो जो हमारे काउंसिल से उनको पावर मिलेगा लॉ बनाने का। से फॉर एग्जांपल ले में हमने एक लॉ पास किया, भाई हमारे जितने भी गोम्पा के लैंड है उनको हमें प्रिजर्व करना चाहते, बिल पास हो ना तो बिल वो LG का छानो। उसी तरह से बोडोलैंड में ही सिर्फ 27 से 29 बिल सिर्फ पेंडिंग है, क्योंकि LG उस पर रजामंदी कभी देता नहीं है। तो अच्छा सोचता क्योंकि LG वर्क्स एट द डिस्पेंसेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि जो आसाम में बोडोलैंड में जो ट्राइब्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हिमंत बिस्वा साहब की वहाँ पे सरकार है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइबल्स हैं, नॉन ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से जब भी आपका कोई बिल LG तब तक पास नहीं करेगा तब तक वो लॉ नहीं बन सकता। तो एक लिमिटेशन से हमारी आ जाती है, क्योंकि हमारे सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेट्स फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो इसलिए साम सीखना था वायलेंस क्या नॉर्थ ईस्ट ना आसाम में ना आता पता उल्फा बना, त्रिपुरा में हमने मिजोरम में इतने सारा वायलेंस देखा, हमारे अनफॉर्चुनेट वायलेंस देखा, इसीलिए कि हमें स्टेट हुड्स की डिमांड चाहिए, क्योंकि हमारे खुद के लॉ बनाने के लिए असेंबली में लॉ बनाने के लिए इख्तियार होगा ना। असेंबली जब आपको लॉ बनाती है, स्टेट में जब लॉ आता है तो आपका फंड डिवोल्यूशन भी बढ़ जाता है। सेंट्रल टैक्स में जो बोलता है ना 41% जो टैक्स डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे स्टेट्स को वो हमें मिलता है, स्पेशल पैकेजेस मिलते हैं, तो हमारा फाइनेंशियल कैपेसिटी स्टेट का बढ़ जाता है। अभी हमारा सारा होम मिनिस्ट्री देखती है, तब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से आप फंड्स ला सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अदरवाइज डिपार्टमेंट से आप फंड्स ला सकते हैं स्टेट के लिए, क्योंकि हमारी एक असेंबली होगी। तो इसलिए स्टेट हुड की डिमांड है। हिल काउंसिल से लेवल करके इसलिए बोला क्योंकि अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो जाहिर सी बात है कल अगर इंप्लीमेंट होता है हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट अगर बन गए तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चौकस पाता ngata district soma shunga choste no pale tarung pura lagle na ma kyong anok ngata nge delimitation takriban songte no isko dale tenang ne sirf population basis ka tang sto nge ja sawal chota area weightage thop to matop to area chikpo astamano population chikpo astamano area nang population niska weightage to ranga nge zik sajat tenang ne tene buddhist मेजॉरिटी योत्कालना माँ थोपतोगा, मुस्लिम मेजॉरिटी योत्कालना डिस्ट्रिक्ट माँ थोपतोगा। आप बताइए मुझे ना जवाब समझिए। ड्राफ्ट ना केडियांग ड्राफ्ट योतिन येजांग चुन योतिन हलाले ते जानेंगा जे केडी मेंबर्स गुने ना डिस्कशन ऑसोंगले फाइनल ड्राफ्ट को ग्रुप्स टेस्टिंग ने तेने ते ना पॉइंट चिकनिशिक ये पॉइंट आउट चोस्ते योतिन कोनला तेने ते रिव्यू चोस्ते ngata ना टाइम जते योतिन, लेकिन दांग ई ड्राफ्ट पे ना थमिरु ते ना पॉइंट चिचिक को मेन बुदुपिले कि काउंसिल ने नंगा वुमेन रिजर्वेशन बो अनाउंस सोंग्स ते ट्विन ते नंगा तंग गोशिपिन, लेकिन इवे ना तन्ना बोट तो पिनिया लेकि
women bu yodna as nominated po mane yung zarkan bole so pasang request chichik to in ngeja yang go mane review choste ibo chikyale question yispa in case the statehood demands that no halale statehood demands that na as a citizen as a very citizen ngata dakse future na ngata kazuk share revenue gun yongchen jazana daksa chaprenga ta more than 6000 crores ngata central government ne yon reale te nangne almost 4000 chok 6 sirif salary chik bo charu reale eu data nye zuk ne khonste nole so pasang ta teza chingati revenue generation bo 1000 crores chok shimane mirukle chkadale so pa baki ngata ngai revenue bo kazuk shia thore state to bachi kazu ngata generate chochen bo question ji kyale jasana nge je tuksam salte or dote ka discussion saate or toshkale tene yam chichik ngata ngai constitution ne article 81b Mustafa Ali said ngira constitution names to teve nanga te zete do each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is so far as practical the same throughout the state le so pasa iu ngaja hek magoy na chin yale zek shik iu explain jiza de na ki inanga mata constitution ji dubat na te population e basis so shika z zete mano kazuk shigi nok zerkan bekayale yang question chichik doing 81b yang question chichik ngata to just to kinji na tax setas pero obviously state chik dup na ko tax chik tangs de mane chahe salary ka indo chahe ngata cheese gi na ta ngata income ka indo hotels ka indo guest houses indo te tangs de mane mana no inanga point chichik dup pilgrimage tax zerkan jigale te o chi ino karu tangche nok zerkan bo chik salpo jatche sele tene last peka ngajeten na jin yango mane composition ekale to gyali mi mang pojiten na zero ki this is not genuine composition mane total ngata KDF ex doms tangna buddhist composition wo mane nyun jiduk zerkan boyale chikot pasa in khachik po हमारा विमेन का पार्टिसिपेशन अनफॉर्चुनेटली किसी भी फील्ड में ना सिर्फ पॉलिटिक्स में बट अदरवाइज भी रिप्रेजेंटेशन उनका हर जगह कम है हम देख रहे थे कि जुडिशरी में भी बिल्कुल 16% ही विमेन है पूरे जम्मू कश्मीर में जो बहुत अनफॉर्चुनेट है मुझे लगता है कि हमारे इस वक्त तो विमेन हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे एक जैसे हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए तो हमारे एपेक्स बॉडी ने इनफैक्ट पिछली बार एपेक्स और केडी ने उनको मुबारकबाद भी दिया इस बात को लेकर कि आपने रिजर्वेशन दिया तो उसमें कोई दोहराई नहीं है कि उसमें ऑब्वियस सी बात है जब भी वो एप्लीकेबल होगा इनफैक्ट मुझे लगता है जो काउंसिल का नेक्स्ट अगर होता है अगर इलेक्शन अभी नहीं किया हाँ वो उसमें ऑलरेडी बात किया है तो उसमें जाहिर सी बात है वो ऑटोमेटिकली लगेगा क्योंकि उस पर लॉ पास किया गवर्नमेंट ने तो उसमें कोई दोहराई नहीं है और रही बात सिमिलरली उन्होंने कहा कि जब कोई असेंबली होता है कल को तो विमेन रिप्रेजेंटेशन तो मुझे लगता है हर बारी जो अगर कुछ गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया तो हमारे इख्तियार में तो ना चाहते हुए भी हालांकि डिलिमिटेशन थिंग ने ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट ने जैसे कहा कि इम्प्लीमेंट करेंगे ना चाहते हुए उसको सबको कोई ना चाहने वाला तो ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी एक मेजॉरिटेरियन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई एतराज़ होना चाहिए इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन तो उसको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली असेंबली होगा चलो 6 शेड्यूल होगा हर जगह पे उसको करना चाहिए रही 81 की बात करता है वो पब्लिक हाउस ऑफ पीपल की बात करता है पार्लियामेंट की बात करता है उसमें अलग से एक डिलिमिटेशन होता है जैसे आपको पता है कि लोकसभा का डिलिमिटेशन होता है तो उसकी बात करता है तो इसलिए उसमें शायद उसका थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बट टुमारो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज एन असेंबली इन लद्दाख अगर कोई असेंबली आता है तो हाउ डू यू देन डू इट देन देयर इज अ डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 देयर इज अ डिलिमिटेशन कमीशन जैसे आपने देखा होगा अभी हमारे बहुत सारे लद्दाख में ALCs एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल का भी डीनोटिफाई किया क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्ली नोटिफाइड नहीं था तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुलाया हमारे जस्टिस साहब आए रिटायर्ड जज आए उन पे ऑब्जेक्शंस लेते हैं तो इस तरह से हर बारी जब भी डिलिमिटेशन होता है लोगों से पूछ कर इस तरह से देख कर पॉपुलेशन का जैसे काल जब मुझे केडीए जब हमारा वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था तो वकील भी थे केडीए ने जो उनके हुआ वो भी थे तो तीन क्वेश्चन वो ये को ना पुट अप चुस्वनियाले समझता उन्होंने बोला जो उन्होंने केरला का एग्जांपल दिया है केरला में ऐसा हुआ था कि जहाँ खचिका पॉपुलेशन गाना मंगो योद्धाने ते का ngata कॉन्स्टिट्यूंसी मार गया पेन रोयल है बट धीरे धीरे जब पॉपुलेशन कम हो गया तो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को एक बना दिया बोला so is it purely not based on population that is my question no it is not purely based because I'll give a very recent example when you look at Jammu and Kashmir post 2019 there was a delimitation for the assemblies in Jammu Kashmir because it's a UT with assembly now when they did delimitation 7 seats were increased in Jammu only 1 seat was increased in Kashmir and 2 seats from Poonch Rajouri का जो सीट है उसमें लाया था वो गवर्नमेंट की मुझे लगता है जैसे
स्पेशली अभी मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, कल को कोई और गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको बांटती है, बट पॉपुलेशन इटसेल्फ इज नॉट ए क्राइटेरिया वन। यही डिलिमिटेशन का इंडिया में डिबेट ही है, साउथ और नॉर्थ का जो अच्छा से ना। तीसरा आ गया, आप कोई भी स्टेट ले लो इंडिया में, देयर इज नॉट ए इवन ए सक्सेसफुल स्टेट लाइक फॉर एग्जाम्पल Gujarat, for example, in terms of revenue, there is no state in this country when you talk about which does not work on aid, central aid. Now, when you have a state, say for example in the northeast, all the northeastern state, in fact मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो उत्तराखंड से भी ज़्यादा, हिमाचल से भी ज़्यादा जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है लद्दाख में, पूरे कंट्री में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी ज़्यादा है। वो लाख पर कैपिटा यानी 1% पे कितना गवर्नमेंट खर्चा करती है। अभी हमारा देखें तो 24,000 करोड़ से लेकर 45,000 करोड़ का लद्दाख का बजट है, यानी डिफेंस में जो आता है, BRO से आता है, स्पेशल पैकेजेस फॉर स्पेशली बॉर्डर रिमोट एरियाज पे आता है। तो इसलिए लद्दाख मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू का कोई मसला लद्दाख में होगा ही नहीं, क्योंकि अभी जितना भी है सारा यूटी होम मिनिस्ट्री के पास है। कल जब स्टेट बनेगा तो रेवेन्यू तो हमें जनरेट एग्जैक्टली जनरेट जरूरी नहीं है। आपका कंसोलिडेटेड फंड जो स्टेट होता है, जिस तरह से 90-10 वाला होगा। नहीं 90-10 नहीं, सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड में अदरवाइज भी जितने भी स्टेट्स हैं उनको कंसोलिडेटेड फंड में, जैसे एक एग्जांपल ये भी रहता है, इट इज नॉट नो एवरी स्टेट वर्क्स ऑन लाइक दैट। एवरी स्टेट जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल पूरी इंडिया में हमारा टैक्स कलेक्ट होता है, उसका 41% स्टेट को वापस देती है, लेकिन हमें लद्दाख को नहीं मिल रहा है क्योंकि यूटी विद असेंबली है। कल को हमारा GST जो होता है, जो हमारा सेंट्रल ले रही है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जब स्टेट होगा, स्टेट GST होगा, तो जो स्टेट का बोला, किसी ने कहा कि पिलग्रिमेज पे हम क्या अभी हम जैसे हमारे जितने भी सैलरीड रेवेन्यू कंपोजर, हाँ, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो Exactly. कल को जब ये होगा तो दैट मींस दे विल हैव टू पे 30 to 40% जो हमें इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आई वांटेड टू एड्रेस दिस। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। नाउ व्हेन यू लुक एट द नॉर्थ ईस्ट, इन दिस केस ऑफ असम, अभी लद्दाख में इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड है। दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6, I am not getting correctly either section 6 or section 10 of the income tax of 1961. It is already exempted. States like हमारा इनकम टैक्स वैसे भी exempted रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ सेंट्रल एक्ट। इनकम टैक्स जो होता है वो स्टेट का प्रेरोगेटिव नहीं होता है, वो स्टेट वैसे भी इनकम टैक्स ले नहीं सकता है, वो सेंटर का प्रेरोगेटिव है। इट्स अ सेंट्रल लॉ एंड दैट इज व्हाई सेंटर exempts it. So if there is a assembly in Ladakh tomorrow, it will be exempted by virtue of the amendment, the act of 1961. And you know, then again the question comes how the revenue will come. Exactly, Bora, it works. तो मैंने एक प्रपोजल हम कर सकते हैं सर, जितने भी यहाँ पे मटेरियल आएंगे, जैसे फ्रॉम कश्मीर जम्मू से आएगा, वी कैन उनको 1% टैक्स कर सकते हैं। नहीं वो टैक्स स्टेट टैक्स यूटी लगा का टैक्स लगाना है। आई विल कंप्लीट बस। आप देखो जेंट के ना पूरा स्टेट टैक्स चलेगा। अब जेंट के जो भी सामान आता है उसमें 2% टैक्स होता है। आर्टिकल टैक्स सब कर सकते हैं, मटेरियल जो भी जितने भी इधर आएगा उसका 1% टैक्स करेंगे, और पावर के रेवेन्यू भी कर सकते हैं, और यूटी टैक्स करके जो एनर्जी रिसोर्स के बारे में इन्होंने अच्छा दूसरा है बट अगेन एनर्जी रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए वेयर आर यू गेटिंग दूसरा एक चीज ऐड करूंगा मैं। नक्शा एनएचपीसी बनाता है यार हाइड्रो जितने भी बहुत सारी कंट्रीज पे यहाँ से पश्मीना जाता है, हम क्यों पश्मीना को ग्रोथ नहीं करेंगे? पश्मीना का जो टैक्स होगा वो स्टेट टैक्स मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाटा तसना किसान जेनके ना तिचा देजा डिफरेंस में 21 ना तसे दम 25 सुपंगाती अनएम्प्लॉयमेंट डाटा किसान 26 या 27 आने घोने अनएम्प्लॉयमेंट डाटा किसान तेजा मिरु त तेरा माता दक्षा किसान दांग जिंगा ता दांगस्ती ना किसान ता डोमिसाइल एक्सेप्ट चोसपा ता रिक्रूटमेंट सो ते टाइम में आता माचोस क्या ता तेन्ना चोला किसान गा जे की 6 शेड्यूल लगा आता दक्षा चु बजेट तिनो पासवा 6 शेड्यूल नी पॉइंट ऑफ व्यू नाही सपोज और सिचनो सॉरी हंग संगमा चियाजना फिजिबल जिंग मिरुक जे फर्स्ट ऑफ ऑल किसान गा 6 शेड्यूल जेरेन दुप ना सो खोने दांग 2025 में लैंड पॉलिसी क्यों सो आता दांग सुपर लैंड प्रोटेक्शन दांग जिन दुख से तिन मगर खोने लैंड पॉलिसी क्यों ना 30% जिक सोक्षी किसान आउटसाइडर एयरपोर्ट चुस मिरो का टू बी डाटा टू बी ऑनेस्ट ताय दरो माता नेक्स्ट मीटिंग किसान डिले चुना सो लैंड प्रोटेक्शन का माता दांग सुपर जॉब रिजर्वेशन का तंस क्या जॉब रिजर्वेशन का ता 6 शेड्यूल पर चीफ फिजिबल मिरुक जना सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसान 6 शेड्यूल माता अमेंड चुना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों हो जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। अभी बीजेपी का सीट कितना है 272 सीट है, तो 2/3 मेजॉरिटी हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम लॉजिकल नहीं थे 6 शेड्यूल मांगने के लिए। हमें 6 शेड्यूल की जगह अगर हमने लैंड प्रोटेक्शन यानी इसी काउंसलर को इम्पार्ट करने के लिए बोलता तो शायद हो सकता था। दूसरी बात,
अगर 6 शेड्यूल लाता तो 6 शेड्यूल क्यों चाहिए? लैंड प्रोटेक्शन छोड़ो, उन्होंने बोला कल्चर आइडेंटिटी या सब कुछ के लिए, हमारे कल्चर कस्टम बुद्धिस्ट, इसमें जितना भी बुद्धिस्ट होगा सबको पता है 1950 के बाद हिंदू कोड बिल आया था 1950 का, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट। उस हिंदू में हिंदू के अंडर क्या क्या है? बुद्धिस्ट, जैन, सिख, 3 रिलीजन को उसमें मिक्स कर दिया। अभी तक जितना भी गाउन हो रहा है इस लद्दाख में, जितना भी गाउन हो उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट किया, हिंदू कोड बिल के अंदर। अगर 6 शेड्यूल आया बाय चांस, अगर हमें 6 शेड्यूल मिला, क्या वो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा? फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ मुस्लिम कम्युनिटी, उनको ट्रिपल तलाक के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जांपल अगर 6 शेड्यूल आया तो वो रिट्रोस्पेक्टिवली मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो 6 शेड्यूल का हमें जरूरत क्या है? फॉर एग्जांपल फिर भी 6 शेड्यूल हमारे आइडेंटिटी को तो नहीं बचा पाया, क्योंकि ऑलरेडी हमने हिंदू कोड बिल में दे दिया। ठीक सर, डोमिसाइल एक आके हमने, हमारे यूथ ने जितने भी 5-6 साल वेस्ट कर लिया। ठीक, 6 शेड्यूल के मामले में अगर नेक्स्ट फिर भी अगर 6 शेड्यूल दे पाया तो ये सब रिजर्व कर पाएंगे? रूलिंग नो, करंट रूलिंग में 272 सीट है। अभी हम बोल रहे कि 2029 तक वेट करना आएगा। 2021 के 2011 के सेंसस के बेस पे लॉक हुआ है। बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो लैंड प्रोटेक्शन ही हमारे पास है ना, तो हम वाई नोट कि हम अभी नेक्स्ट मीटिंग में डायरेक्ट लैंड प्रोटेक्शन के लिए जाए। 272 मिनी वो ने कोalition गवर्नमेंट नो सवाल, कोalition गवर्नमेंट ऑपोजिशन पार्लिमेंट वोटिंग शिक्षा सवाल आता जेएनके सपोर्ट तामिल सवाल 2019 जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक क्यों 370 तोड़ा इचोसना दिल्ली साताम बाकी पार्टियों ने ऑपोजिशन ने साथ माता स्थाना डिगिराले ते जण चीफ या सोजना 303 होती होनाला मेजॉरिटी पावर माता दक्षर 272 में मेजॉरिटी पावर में रूपल ता माता हम दक्षर नोट्स को पास माचो माता पता न सचे में पास माचो सवा इंट्रोड्यूस यू नाम 2/3 मेजॉरिटी गोस पा तेना राज्यसभा तेना इंट्रोड्यूस जो आता तो कांग्रेस से माता डिमांड बोल कुछ माता पार्लिमेंट ना आता तेज पेरा बोल माता पता में 25 सपोर्ट भाई लंयो ना माता मेजॉरिटी में तो जिस स्पेरे गिन बिना भाई लंयो ना ये सामने ना या तो ना पुतो जरा रपिन यरा तो जरा रपिन माता डोमी सरबर ना ला जाइन के ना पुतो संजे ये गवान को संना गवान काने स्वीता स्वीता mama domisal sweeta sto mama domisal bu sweeta sto spengera zara jain kira nyapor lada na domisal ta sto zara propose sto suwa sto mata mane mh na po apex body lan po ngata stick tu kya diring chuk pa ngata domisal bo ngata dang ngata नेंता ने मने तेता ने मने ngata टेबल का मा बोटेंगे ना कजो से ngata प्रपोज टू क्या सेकंड अनएम्प्लॉयमेंट डाटा राइज होते हुए हमने ये देखा अगर फिर भी हमने अगर 6 शेड्यूल पे अड़े रहे। अच्छा ऐसे क्वेश्चन अच्छा करना अच्छा क्या हेलो आपने 2 सवाल पूछे यानी संडू प्लान हम 6 शेड्यूल में नहीं जाते हैं लैंड प्रोटेक्शन और आइडेंटिटी के लिए। मैं समझ गया 2 सवाल आपने पूछा, दोनों ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे बड़ा अच्छा भी लगा आपने जिस तरह से पूछा। एक सवाल आपने पूछा जो इंडस्ट्रियल लैंड पॉलिसी है 2023 का था। आप देखिए अभी भी जाके होम मिनिस्ट्री ने एपेक्स और केडी ने पहली बार जब इंडस्ट्रियल जैसे भी आगे हमने उनने ओपन के लिए 1 महीने के लिए हमारे लोगों को ऑब्जेक्शंस के लिए दिया था। उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्शन हमने एपेक्स और केडी ने दिया था कि हमारी बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल बिल्कुल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था और बाकी बाहर से लोग उनके लिए आने की बात कर रहा था। तो मैं आपको ये वाजे करूं कि क्लियर करूं कि पहला ही उसके बाद इमीडिएटली जो नो नॉट ओनली क्रिटिसिज्म वुड नॉट हैव हेल्प्ड इट, क्रिटिसिज्म डज नॉट स्टॉप एनीथिंग फ्रॉम कमिंग एंड गेटिंग इम्प्लीमेंटेड इन लद्दाख। But in the Home Ministry meeting, even during the presence of Kotwal साहब, the Home Ministry said we are putting a stop on this. उसको 2 बार उन्होंने बाहर निकाला, एक बार चेंज करके निकाला, उसके बाद आपको याद देखो 24 में उसने ऑब्जेक्शन किया तो उसको हॉल्ट पे रखा। हमने बोला कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। होम मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया, दिस एक्सेप्ट किया तो पास नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर अभी 2025 तक लद्दाख में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, बट इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आवर प्रोटेस्ट
आता है ध्यान से प्रोटेस्ट उसका ध्यान से आता मीटिंग उसका ध्यान से लोग हैं उसका। आपको याद होगा पिछली बार विंटर में कितने सारे लोग 20-30 हज़ार लोग आ गए थे। टेन्ना जैसे अनरिटन रूल है कि लद्दाख में लोग नहीं बेच सकते, तो रेवेन्यू वाले भी किसी बार को रजिस्ट्रेशन नहीं करते ईजिली, नहीं करते हैं, तो इसलिए वो प्रोटेक्ट किया है। दूसरी बात 6 शेड्यूल्स पर एज शेड्यूल होता है, अगर 6 शेड्यूल होता है बोलता है इट हैज़ टू बी 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ इट डज नॉट ओनली मीन द बीजेपी। नाउ हाँ वो स्टेज कब आएगा बिल पास करने का, जब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हमसे बात करेगी, हमसे एग्री होगा। तो अगर हमारी होम मिनिस्ट्री में अगर जो बात चल रही है, होम मिनिस्ट्री अगर एग्रीज कि हमें 6 शेड्यूल देंगे, तो इसका मतलब एग्री कर रही है ना बीजेपी, हुकूमत एग्री कर रही है, तो उसमें उनको बिल पास करने का क्या है। तो अपोजिशन ने तो ऑलरेडी बोला है, इतने सारे टीएमसी है, बाकी जो एनडीए की कोalition है, तो वो तो सपोर्ट करेंगे इसको। बट हडल हमारा क्या है, हडल यही है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिमांड है जो हमारे लद्दाख को ओवरऑल प्रोटेक्ट करेगी, इसमें होम मिनिस्ट्री अगर एग्री करती है, अमित शाह जी अगर हमारे होम मिनिस्टर एग्री करते हैं, तो इट विल गेट पास्ड इन द पार्लियामेंट। उसके एग्री करने पर उनके यही, इसलिए तो ये डिबेट चल रही है, इसीलिए तो उनके साथ मुज़ाकरात हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं कि हम बार बार यही उनसे रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि भाई आप इसको, हमारी जो डिमांड है लद्दाख की, हमारी आइडेंटिटी को, हमारे कल्चर को और जॉब्स को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए ज़्यादा हो गया क्योंकि इसीलिए करके हमारे यूथ ने हमें इतना प्रेशर डाला बीच में, यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट बोला कि आपका 6 शेड्यूल आता रहेगा, स्टेट रूट आता रहेगा, लेकिन हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का क्या होगा, इसीलिए चलते रिक्रूटमेंट्स करवाए। उसमें एपेक्स बॉडी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया, केडी ने जोर लगा कि बोला कि रिक्रूटमेंट हमें जल्दी करो, हम उनसे पीछे रह गए जम्मू कश्मीर से। उनने केस का नोरा, अभी आप पढ़ रहे हो कि होप आपको ये भी पता होगा कि वहाँ पे 4 बैच केस के निकल चुके हैं ऑलरेडी। हमारे यहाँ केस का एक भी बैच उसके बाद नहीं आया, तो फिर भी हमने स्पेशल एक प्रोविजन में यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करा, जबकि यूटी विदाउट एन असेंबली में कोई पीएससी का प्रोविजन ही नहीं होता है। पीएससी के सिर्फ 2 प्रोविजन है, एक इज 1903 सेक्शन 93 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। इट सेज दैट देयर शैल बी ए Public Service Commission for the UT of Jammu and Kashmir, and for Ladakh UPSC shall conduct the exam। One, और आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि 2 स्टेट्स का एक जॉइंट पीएससी हो सकता है। उसमें यूटी विदाउट लेजिस्लेचर का कोई स्कोप ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है। आपको ये भी पता है कि आपका डेनिक्स और डेनिप्स पे लोगों को डालते हैं, तो हमारे लोगों की यहाँ के रिजर्वेशन से अफसर्स की रिजर्वेशन की, हमें डेनिक्स में नहीं डाले, यूपीएससी में हमारे यहाँ पीएससी होगा। कल के जब तक हमारा कल का अगर असेंबली नहीं होगा तब तक पीएससी कहाँ से आएगा, मुझे बताइए। इसलिए 6 शेड्यूल की डिमांड के साथ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए बन गई। हमने रिसर्च किया, लोगों से पूछा, एक्सपर्ट से पूछा, जिनने लाया है स्टेट्स लाए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो बना है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स, हमने बोला कि अगर आपको असेंबली होना है, पीएससी अगर होगा, गेजेटेड पोस्ट तभी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं जब आपका एक पीएससी होगा। पीएससी कब होगा, जब आपका एक असेंबली होगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है स्टेट रूट की डिमांड है।